Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter local government. We have started the chapter in the previous class and we have discussed the importance of Gram Panchayat, and we have seen that Gram Panchayat plays a very important role in making the government, making the administration and the government people friendly. It is very much effective in solving the problems which are local in nature. It is very much cost effective also. It is less time consuming. So overall we can say that the local government is very much people friendly, and it is accessible for the common people, and that is why we need local government. Not only this, we have also discussed how local government makes the democracy real, the participatory democracy, because we know that one of the most important element of democracy is participation. So through participation, democracy becomes real and meaningful, and this participation we can experience this participation at the local level. जो direct participation हमें दिखता है, that is visible, that can be experienced only at the local level. We can't expect this kind of direct participation of the people from at the center level or state level, because there we are ruling only through our representatives. People are not taking direct participation in the process of the government, but at the local level people are directly participating in the process of the government. And then the second point, or we can say the third point, which is very much important, that the local government is there to protect the interest of the local people. Like we have seen in the village Vengai Vasal, which is in Tamil Nadu, how because of efforts of the Gram Panchayat and the Sarpanch, the village was able to have its control over the piece of land that was 20 hectares of land जो थे उस पे उसने अपने होल्ड को बना के रखा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया था अपने एम्प्लॉयज़ को, बट ये इन्होंने इस गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, और जो ज़मीन जो वेंगई वासल विलेज की ज़मीन थी उसको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में बांटने से मना कर दिया, और तब ये मैटर कोर्ट में भी जाता है, इन्हीं की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से इसको कोर्ट में पहुंचाया जाता है मैटर को। और पहले तो रूलिंग जो है वो इनके सपोर्ट में नहीं आती है, बट बाद की जो रूलिंग होती है, जो डिवीज़न बेंच रूलिंग देता है, वो कहता है कि ग्राम पंचायत जो है उसने बिल्कुल सही किया है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इसको ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह से अगर ग्राम पंचायत इतनी एक्टिव नहीं होती तो वो गांव अपने उस पीस ऑफ लैंड को वो लूज कर जाता। तो इस तरह से इन्होंने, ग्राम पंचायत ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना ये रोल प्ले किया कि दे आर अकाउंटेबल for promoting the interest of the villagers, they are accountable for protecting the interest of the villagers, है ना। तो ये these are the importance of local government, and that is why we need a local government. In our country what we find that the local government was there from the very beginning. But it was only in the year 1993 when these local government became a part of the constitution. So first of all we will see the evolution, or how this local government evolved in our country, कैसे उनका growth होता है, how these local government grew in our country. So our next topic is growth of local government in India.
growth of local government in India. So what we find that in our country local government was there from the ancient time. अगर हम ancient history को भी देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी। और उस समय क्या होता था कि उनको हम सभा कहते थे। मोस्टली जो विलेजेस में जो लोकल गवर्नमेंट जिस फॉर्म में थी दे वर कॉल्ड सभा। सभा क्या होता है? असेंबली, विलेज असेंबली, जो कि सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज होती थी। ये एंशियंट टाइम में थी। और फिर धीरे धीरे यही जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सभा जिसे कहा जा रहा है, यही सभा जो है वो किसका फॉर्म ले लेती है? वो पंचायत का फॉर्म ले लेती है। और इस पंचायत में ये जो पंच है ना, दैट इज फॉर 5 पीपल, ठीक है, एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन्स। ये पंचायत क्या था? एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन्स, जिसमें कि कोई भी जो गांव के मैटर होते थे, कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, तो वो क्या होता था कि विलेज लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स होते थे वो पंचायत के पास आते थे। और इसमें 5 लोग जो जिनको मिला करके वो पंचायत बनता था, दे यूज टू टेक डिसीजन। इसमें से यही जो अर्लीस्ट फॉर्म हम देखते हैं हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट का था, ये यही था, सभा थी, बिल्कुल एंशिएंट टाइम में। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता ये सभा ने पंचायत का फॉर्म ले लिया। और इसका जो नेचर था, इसके जो कंपोजिशन थे, वो पूरी कंट्री में एक जैसा नहीं था। एंशिएंट टाइम में हर जगह अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू लोकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लोकल नीड, ये सब हुआ करता था। ये हम बात कर रहे हैं एंशिएंट और मीडिएवल टाइम की। अब अगर हम मॉडर्न टाइम में आते हैं, मॉडर्न टाइम में इंडिया वॉज नॉट फ्री कंट्री, है ना। मॉडर्न टाइम की स्टार्टिंग होती है जैसे ही मेडिवल पीरियड खत्म होता है और मॉडर्न टाइम स्टार्ट होता है, और हम जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो उस समय भी ऐसी बात नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ब्रिटिश रूल था उसने भी लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी ग्रो करने के लिए एफर्ट किया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एफर्ट हमें दिखता है वो है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन, ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 1 नंबर के लिए बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन होते हैं। लॉर्ड रिपन जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दीज इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना। जो अभी आज के समय में हम देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, वो स्टार्टिंग करने वाले लॉर्ड रिपन ही थे। और रिपन कौन थे? ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया के वायसराय थे। और जब इन्होंने स्टार्टिंग किया इंडिया में इस इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, वो टाइम कौन सा था? वो टाइम था 1882। 1882 में ये वायसराय बनते हैं इंडिया के। और उसके बाद से ही ये जो भी लोकल बॉडीज में जो चेंजेस आते हैं कि वो इलेक्शंस होने लगते हैं, वो सब लॉर्ड रिपन ने ही लाया था, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इंडिया में मॉडर्न टाइम में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को क्रिएट करने वाले कौन थे? वो इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने 1882 के बाद से इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस समय इनको क्या कहा जाता था? ये जो लोकल, वो जिनको हम देख रहे हैं कि सभा पहले कहलाते थे, पंचायत कहलाने लगे। फिर जब मॉडर्न टाइम आया, जब लॉर्ड रिपन की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय में इनको क्या कहा जाने लगा? दे वर कॉल्ड लोकल बोर्ड्स। ठीक है, तब इनको लोकल बोर्ड्स कहा जाने लगा। और ये हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, एक फॉरेन कंट्री हम पे रूल कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो हमारे किसी भी डेवलपमेंट पर उनका उतना ध्यान नहीं होगा, बिकॉज दे वर नॉट देयर टू फॉर एनी पॉजिटिव पर्पस, है ना। उनका तो रूल करने का जो पर्पस था वो एक्सप्लॉयटेशन था। दे जस्ट वांटेड टू यूज आवर रिसोर्सेज,
तो अगर हम उनको कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। हाँ, लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लोकल बॉडी की स्टार्टिंग लॉर्ड रिपन ने की, लेकिन जो ग्रोथ था लोकल बॉडीज का, लोकल बोर्ड्स का, वो बहुत ही स्लो था। और ये टाइम क्या है, हम 1882 के बाद की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी एंड होने जा रहा है, और इस समय तक हमारे कंट्री में जिसको कहेंगे हम नेशनल मूवमेंट जो है वो दैट वाज स्टार्टेड, है ना। 1885 में कांग्रेस जो है वो उसका फाउंडेशन हो चुका था, नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी 19th सेंचुरी के एंड होते होते। और इसमें अब कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा, और भी ज्यादा पावर देने होंगे। जितने दिए गए हैं लोकल बोर्ड्स को पावर, उतने सफिशिएंट नहीं। तो कांग्रेस की एक डिमांड, बहुत सारे कांग्रेस डिमांड करती थी, वो तो यही काम ही था, है ना। नेशनल मूवमेंट हमारा जो हुआ वो कांग्रेस के ही लीडरशिप में हुआ, और कांग्रेस का यही काम ही था कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, अपने डिमांड्स को रखना। तो गवर्नमेंट पे एक डिमांड, वन ऑफ द डिमांड जो कांग्रेस की तरफ से थी वो यही थी कि जो गवर्नमेंट जो है उसको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो लोकल बॉडीज हैं वो इफेक्टिव बन सके। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल डाल के आखिर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो है वो पास होता है। ठीक है, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज पास्ड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे बातें थी कि इंडिया को कैसे रूल करना है, क्या क्या गवर्नमेंट में चेंजेस लाने हैं, एवरीथिंग इज देयर, उसी में होता था, है ना। तो इसमें एक जो वन ऑफ द एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, या वन ऑफ द प्रोविजंस इन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज विलेज पंचायत। इट वाज अबाउट विलेज पंचायत। इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि विलेज पंचायत जो था वो कई सारे प्रोविंसेस में स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, ये जो लोकल बोर्ड्स थे जो कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिनको स्टार्ट किया था, ये अब क्या फॉर्म ले लेते हैं, अब ये फॉर्म ले लेते हैं विलेज पंचायत का बाय द दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, तो ये अब बन गया हमारा विलेज पंचायत। ठीक है, और इसके बाद क्या देखते हैं, फिर से एक एक्ट आता है। इस तरह के एक्ट जो है ना वो गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती रहती थी इंडिया को रूल करने के लिए। रूल करने के लिए तो बहुत सारे रूल्स होने चाहिए ना, रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर करके गवर्नमेंट पास करती थी। जैसे एक 1909 में पास हुआ था, फिर एक ये आया 1919 में, 1919 में, और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट की गई। तो फिर से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आता है, इस एक्ट से भी इसको आगे ही बढ़ाया जाता है कि जो लोकल बॉडीज हैं उसके लिए जो भी नए नए प्रोविजंस किए जाते हैं। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा उस दूसरी तरफ क्या है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट तो चल ही रहा था इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम महात्मा गांधी के व्यू पॉइंट को देखें तो महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, वो इस बात की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे कि पावर कभी भी कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का पावर, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, दैट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन और फ्यू हैंड्स, बल्कि उसका डी कंसंट्रेशन होना चाहिए। पावर शुड बी
डिसेंट्रलाइज्ड, एक जगह पे पावर नहीं होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी पावर एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीड्स टू मिसयूज ऑफ पावर, एंड दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो महात्मा गांधी वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. तो इकोनॉमिक पावर की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारे कंट्री में इकोनॉमी है वो इस तरह की हो जिससे कि इनइक्वालिटी प्रमोट ना हो. अगर हम पॉलिटिकल पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज द वे टू अचीव दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर? दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस लोकल गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर है तो क्या है, दैट इज द डिवीजन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट at different levels. As I told you in the starting of the chapter that federalism, we have adopted federalism, and under federalism what is the most important feature of federalism? That there is a distribution of power among different levels of government, and this distribution of power is done by the constitution itself. And in order to make democracy real, in order to make our federalism stronger, it was very much important that the power must be decentralized. And Mahatma Gandhi, he was strongly supported this view that power should never be centralized. और उनका ये भी ओपिनियन था कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उन सब में लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल होंगे. इन द सेकेंड बुक हमने डेवलपमेंट एक चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस, है ना. हमने डेवलपमेंट एक चैप्टर है हमारा सिविक्स में, लास्ट चैप्टर है, सिविक्स में नहीं मतलब सेकेंड बुक में, पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड बुक में डेवलपमेंट इज द लास्ट चैप्टर. उस चैप्टर में इफ यू रिमेंबर हमने बात की है दो तरह के डेवलपमेंट के अप्रोच होते हैं. एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन में ऊपर डिसीजन लिया जाता है, नीचे इम्प्लीमेंट किया जाता है. बॉटम अप में नीचे के लोगों को, जो आम लोग हैं, जो आम कॉमन पीपल हैं, उनको इन्वॉल्व करके उनके अकॉर्डिंगली, उनके नीड के अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है ना, और तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो व्हेन गांधी जी इज सेइंग दैट इन ऑर्डर टू मेक एनी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव सक्सेसफुल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट लोकल पीपल मस्ट बी इन्वॉल्व. तो ये किसकी बात कर रहे हैं गांधी जी? गांधी जी इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉटम अप अप्रोच. मतलब इनिशिएटिव शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम लेवल. इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट शुड बी स्टार्टेड बाय द कॉमन पीपल. इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड बाय द higher authorities. It should not be imposed by the people who are there to take decisions. Like the Prime Minister, the योजना आयोग. हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो यही है ना, कि हम ऊपर डिसीजन लिया जाता है और नीचे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या असर होगा लोगों पे, उसको टोटली इग्नोर किया जाता है. तो दैट इज नॉट अ करेक्ट way to for the development of the country. If we want कि जो भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो, तो वो तभी सक्सेसफुल होगा जब उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें कॉमन पीपल को इन्वॉल्व किया जाएगा. एंड इट कैन बी डन ओनली थ्रू द लोकल गवर्नमेंट. और महात्मा गांधी इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि जो भी आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है उसमें पंचायत को इन्वॉल्व करिए. जब पंचायत इन्वॉल्व होगा तभी वहां पर डेवलपमेंट होगा. अगर आज हम केरल को देखते हैं तो केरल काफी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड स्टेट हमारा है. न सिर्फ वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है. हर तरह से हम कह सकते हैं कि केरल इज अ परफेक्ट स्टेट. क्यों?
ये वहां पर इसको बहुत पहले ही जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद से जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ इसको अडॉप्ट कर लिया गया था वहां पर कि डिसेंट्रलाइज था सब कुछ। लोकल लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व करके डिसीजन लिया जाता था और आज भी वही किया जाता है। तो ये जो है ये जिसको हम कह सकते हैं कि इफ वी वांट टू बी डेवलप्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर डेवलपमेंट, कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें कि हमको सक्सेस मिले। अब जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनने का डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया without taking into consideration that the construction of the dam will cause so much displeasure, will cause so much problems for the local people. It caused displacement of millions of people. तो गवर्नमेंट ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर नर्मदा नदी पर हम सरदार सरोवर बांध बनाने जा रहे हैं तो उस डैम के बनने के कारण लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, टॉप में डिसीजन हो गया, डाउन में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, लोगों का इतना प्रोटेस्ट हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, हर कोई इससे जुड़ा। तो आखिर प्रॉब्लम आई इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैटर कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। तो अगर आपने पहले ही लोगों को इन्वॉल्व कर लिया होता, जो लोकल पीपल हैं, जो कि यू नो दैट दोज पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय योर डिसीजन and because they will be affected by this particular decision, so instead of taking the decision unilaterally, the decision should be taken by taking their viewpoint also. उनके viewpoint को लीजिए, उनके साथ बातें करिए, तब decision लीजिए। This is what is decentralization of power। जब हम कहते हैं कि पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए तो उसका यही मतलब होता है। और जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो उसका मतलब है एकदम बॉटम, जो सबसे नीचे है, यानी कि हमारे जो विलेज है, दे आर एट द बॉटम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां से जब स्टार्ट होगा ना पावर, जब वहां मिलेगा तभी पूरा का पूरा कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगा। इसमें महात्मा गांधी जो है उनका यही व्यू था और उनका ये कहना था कि इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम। बॉटम पर इंडिपेंडेंस लाओ। देश को आज़ादी मिल गई, बट ये जो आज़ादी जो देश को मिली है उसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र में सेंटर में गवर्नमेंट बन गई, स्टेट में गवर्नमेंट बन गई। आप नीचे आइए, पूरी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। Now the states, one state is divided into various districts. फिर अब डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कुछ शहरी इलाके और कुछ गांव के इलाकों में बटे होते हैं। अब जो रूरल एरियाज होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उसके नीचे ब्लॉक्स होते हैं, फिर उसके नीचे विलेज होता है। तो हम अगर देखें तो ये अगर इसको हम इस तरह से समझे, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे नीचे कौन है? विलेज होता है, और सबसे ऊपर कौन होता है? जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सबसे नीचे क्या होता है? विलेज होता है। तो जब हम सोचेंगे कि हमारा कंट्री में इंडिपेंडेंस सही में हम इंडिपेंडेंटली काम करें, तो सिर्फ यहाँ पर इंडिपेंडेंस देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर फ्रीडम देने से कुछ नहीं होगा। ये जो है ये नीचे आना चाहिए, बॉटम लेवल पे आना चाहिए, दैट इज एट द लेवल ऑफ द विलेज, है ना। और महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि लाइफ विल बी अ पिरामिड with the apex sustained by the bottom। यही पिरामिड की बात वो कर रहे हैं, जहां पर जो एपेक्स है वो बॉटम उसको सस्टेन करेगा। मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ यहां पर पावर नहीं दीजिए, यहां पर सिर्फ नहीं पावर होना चाहिए, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होकर के नीचे तक पहुंचना चाहिए। और नीचे के लोग जब पावरफुल हो जाएंगे, जब वो रियल में
पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के प्रोसेस में, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, डेवलपमेंटल डिसीजंस में, तो यहाँ से ताकत मिलेगी सेंटर को, तब तो सेंटर जो भी काम करेगा वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज क्या होगा, वही जो अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि सेंटर ने डिसीजन ले लिया कि हमको नर्मदा नदी पर बांध बनानी है और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो वो क्या है, आपके उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में हिंड्रेंस आती है, कोर्ट केस मुकदमा एवरीथिंग इज देयर, प्रोटेस्ट। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, सेंटर उससे क्या हुआ, कमजोर पड़ता है। आप सेंटर कैसे मजबूत बनेगा, जब उसको पावर यहां से मिलेगा, ये यहाँ की इसकी सहमति आप लीजिए, गांव की सहमति आप लीजिए, तब आपको वो जो कुछ भी आप डिसीजन लीजिएगा उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस इन आवर कंट्री, कि डिसीजंस ले लिए जाते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है क्योंकि गांव को उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता है। डिसीजन ऊपर से लेकर के आप उसको हम पे इम्पोज करते हैं, डोंट इम्पोज, टेक उनको पार्टिसिपेट करवाइए डिसीजन मेकिंग में, तब वो खुद ही आपका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और इसलिए महात्मा गांधी ने हमेशा यही सपोर्ट किया कि हमको जो है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पंचायत को बहुत ज़्यादा तो नहीं बट पंचायत को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, उनको बहुत सारे पावर देने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑलवेज लीड्स टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। और जो कि हम लोग उस समय फेस कर रहे थे, जो हमारा उस समय कॉलोनियल रूल था, उसमें कौन था सबसे ऊपर, गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल वाज रूलिंग द कंट्री, दिल्ली में वो थे और सारे पावर जो थे वो उन्हीं के हाथ में कंसंट्रेटेड थे। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर से क्या किस तरह की कंडीशन हो रही थी, क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो सब कुछ हम लोग झेल चुके थे, तो अब हमें उसको नहीं करना था, ठीक है। तो ये चीजें तो हमारी समझ में आ चुकी कि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, किस तरह से कांग्रेस का क्या डिमांड था, और इसमें भी खास करके महात्मा गांधी का क्या व्यू था, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि व्हाट वाज हिज व्यूज रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमें देखना है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। 1946 के दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 और ये बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इट वाज असाइंड टू द स्टेट्स। जैसे कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, फेडरलिज्म के अंदर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेंशन किया गया। वन वाज एट द लेवल ऑफ द सेंटर एंड द अदर वाज एट द लेवल ऑफ द स्टेट, और इन दोनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है ना। कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दिस इज अबाउट द लॉ मेकिंग पावर, है ना। जो लॉ मेकिंग पावर है उसको बांट दिया गया। जैसे जो यूनियन लिस्ट है वो किसको दे दिया गया, यूनियन लिस्ट जो था वो दे दिया गया यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरह से दूसरा लिस्ट जो था वो स्टेट लिस्ट था जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, और कॉन्करेंट लिस्ट था जिसमें जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में थे उस पर दोनों को लॉ बनाने का अधिकार था। बट अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देन द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल्ड, है ना। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, ये जो सब्जेक्ट है वो किस में रखा गया, स्टेट लिस्ट में रखा गया। यानी कि लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी लॉज बनेंगे वो कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो इसके रिगार्डिंग लॉ बनाते थे, ठीक है। तो एक तो प्रोविजन ये किया गया कि इसको स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया गया। दूसरा जो प्रोविजन था वो ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेंशन किया गया
कि गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे विल एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट। वो इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी जिससे कि जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है वो उनका एम्पावरमेंट हो, ठीक है। बट वी ऑल नो दैट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, है ना। दे हैव ओनली मॉरल फोर्स बिहाइंड देम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम यही इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा प्लेस नहीं दिया गया, बहुत प्रोमिनेंट प्लेस, एडिक्वेट इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। जितना कि इम्पोर्टेंस उसको मिलना चाहिए था उतना इम्पोर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। आपने उसको स्टेट लिस्ट में डाल दिया, आपने उस सेंट्रल लिस्ट में नहीं डाला, स्टेट लिस्ट में डाला। आपने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक लाइन ये कर दिया कि हाँ होना चाहिए, बट इट वाज नॉट कंपल्सरी ऑन द गवर्नमेंट टू फॉलो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से एडिक्वेट इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। देयर वर सम रीजन बिहाइंड दिस। क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उसको और भी कई सारी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।